Both are there, and from the Bible we can get both life and knowledge. दोनों ही वचन में है और बाइबल में से हमें जीवन भी प्राप्त हो सकता है और ज्ञान भी प्राप्त हो सकता है। A lot of knowledge from the Bible also is very, very interesting. बहुत सारा ज्ञान बाइबल में से पाना भी बहुत ही दिलचस्प बात है। We can go into Greek and go into the Latin and what is Hebrew, and the study becomes quite interesting. और हम यूनानी में जा सकते हैं और दूसरे भाषाओं में जा सकते हैं और जो हमारी पढ़ाई रहेगी बहुत ही दिलचस्प रहेगा। There are some amazing things in the original Greek and all which does not come very much clearly in the English. इब्रानी भाषा में से बहुत सारे अद्भुत से सत्य हैं जो कि अंग्रेजी भाषा में अच्छे से नहीं आ पाए हैं। But just by being taken up with that does not really make much difference in our life if it's only the knowledge. यदि सिर्फ उतनी ही बातों में हमारा ज्ञान बरकरार रहे तो हमारे जीवन में उससे कोई लाभ नहीं होगा। And the Bible says that knowledge puffs up. और बाइबल हमसे कहता है कि जो ज्ञान जो है वो हमें फुगा देता है। Is that verse? Corinthians, Corinthians 8, is it? 1 Corinthians 8. Yeah. 1 Corinthians 8:1 says, knowledge makes arrogant, but love edifies. Okay, so knowledge, when we get, slowly it puffs us up, thinking that we are better than others. और जैसे ही हमें ज्ञान मिलता है तो हम घमंडी हो जाते हैं ये सोचकर कि हम दूसरों से ज़्यादा बेहतर हैं। And the knowledge of good and evil is living by, if you want to live by the knowledge of good and evil, is like, what is it correct to do this or is it wrong to do this? यदि हम भले बुरे के उस ज्ञान के साथ जिएंगे तो हम कैसे जीते हैं, क्या ये काम करने के लिए सही होगा या गलत होगा ये सोचकर। In many of our things we go by that. Is it correct to do this? Is it correct or is it wrong? हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहाँ पे हम ये देखते हैं कि ये करने के लिए सही होगा या गलत। Then if you are not sure, we'll ask somebody, is this correct or is this wrong? यदि हम उसके बारे में पक्के नहीं होंगे तो हम दूसरे से पूछते हैं कि क्या ये सही है या गलत है। So that is living by the knowledge of good and evil. तो यही होता है भले बुरे के ज्ञान के साथ जीवन जीने का मतलब। Sometimes we don't need God for that. कई बार हमें उसके लिए परमेश्वर की जरूरत नहीं पड़ती है। We can ask our brothers and sisters, we can ask our other people, and they will give us the knowledge of good and evil. हम अपने भाई बहनों से पूछ सकते हैं, कोई और लोगों से पूछ सकते हैं, वो हमें भले बुरे का जो ज्ञान है वो दे सकते हैं। But that is not a Christian life. पर ये मसीही जीवन नहीं है। That every unbeliever lives like that. जितने भी अविश्वासी हैं वे सारे लोग ऐसा ही जीवन जीते हैं। Is this taxable or not taxable? All that we try to consider is good. There are some things which we do not know, we need to do that. But living just by knowledge of good and evil, that is what God said to Adam and Eve. Don't eat from that knowledge of good and evil tree. और सिर्फ भला या बुरा पहचान कर उस काम को करना जो है वैसे ही जीवन जिया जाता है, परंतु इसीलिए प्रभु परमेश्वर ने उनसे कहा था कि ज्ञान जो भले बुरे का ज्ञान का जो पेड़ है उसका फल मत खाना। And Galatians 3:21 says, गलातियों 3 अध्याय उसका 21 वचन कहता है, Is the law contrary to the promises of God? May it never be. For if a law had been given which was able to impart life, then righteousness would have indeed been based on the law. तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? कदापि ना हो, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती। So living by the law is also living by the knowledge of good and evil. तो व्यवस्था के अनुसार जीना भी भले बुरे के ज्ञान के अनुसार जीना ही होता है। The law was not able to impart life. और जो व्यवस्था है वो जीवन नहीं दे पा रही थी। Okay? But in the new covenant, परंतु नई वाचा में it says in Romans chapter 8, रोमियो के 8वें अध्याय में कहा गया है, verse 2, दूसरा वचन उसका, For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set you free from the law of sin and death. क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। Now there is a law of the Spirit, and that Spirit gives life.
और अब ये आत्मा की व्यवस्था है जो हमें जीवन देता है It has set us free from the law of sin and death. और हमें उस वो पाप और मृत्यु की जो व्यवस्था है उसमें से आजाद करती है। What does that mean? उसका मतलब क्या है? Now for everything we look to the Lord अब हम सब चीज के लिए प्रभु की ओर देखते हैं। and say, Lord, just show me what is your will in this. हम कहते हैं प्रभु दिखाइए कि इसमें आपकी इच्छा क्या है मेरे लिए। And then the Holy Spirit gives us a peace about doing something. और पवित्र आत्मा कोई भी काम जो हम करने जाते हैं उसके लिए हमें शांति देते हैं। Maybe some things, maybe even legally right, हो सकता है कि नियमित रूप से वो बात सही हो, but in some case the Lord say, you don't need to do that. और कई बार प्रभु हमसे कहेंगे कि ये आपको करने की जरूरत नहीं है। So it is always living by that, the dependence on the Holy Spirit, तो हमेशा ऐसे ही पवित्र आत्मा पर निर्भर होने का एक जीवन है that we reach life. कि हम उस जीवन की ओर जा पाते हैं। We can take counsel from brothers and sisters. हम भाई बहनों से सलाह ले सकते हैं, We can take counsel from anybody, किसी से भी सलाह ले सकते हैं, but not just depend on totally on man. पर सिर्फ मनुष्यों पर ही निर्भर नहीं रहना है। Sometimes people may think, oh, this brother, the elder said so, now it is okay. कई बार लोग ऐसे सोचते हैं कि प्राचीन ने बोल दिया है, अगुवे ने बोल दिया तो सही होगा ये। I asked the elder and he said it's okay. और मैंने जाके प्राचीन से पूछा, उन्होंने कहा तो उन्होंने बोला कि ये ठीक है। To some extent it's okay, but we have to grow. कहीं हद तक तो ये सही है, परंतु हमें उससे आगे बढ़ना है। Is that the Lord also telling you? क्या प्रभु भी आपसे यही कह रहे हैं? Is it a confirmation या प्रभु से आपको स्थिरता मिल चुकी है उस विषय में? that the elder or the mature brother has confirmed it? एक अगुवे ने या तो फिर कोई भाई ने उस बात को स्थिर कर दिया हो, That is the way it should be. तो वो ऐसे ही होना है। Counselors we all need, and I also need even today. हम सभियों को सलाह की और उपदेशों की जरूरत है, मुझे भी जरूरत है आज भी। But life comes by depending on God. पर जीवन जो है वो परमेश्वर पर निर्भर होकर ही हमें मिलता Brothers and है। sisters, life comes by, Jesus said, unless a corn of wheat falls to the ground and dies, it does not produce fruit. प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब तक कि गेहूं का दाना जो है नीचे गिरकर मरता नहीं है तब तक वो फलवंत नहीं हो सकता। So how does life come for the Christian? It is by dying to the self. और एक मसीह के लिए जीवन किस तरीके से आता है? वो अपने स्वयं के लिए मरने के द्वारा आता है। We heard Brother Clifford saying about that. In day-to-day life, there's a denial of self which produces the life. और जैसे कि भाई क्लिफर्ड ने एक बार कहते हुए मैंने सुना कि हमारे प्रतिदिन के जीवन में एक स्वयं के लिए मरने की बात आती है, वही जीवन को उत्पन्न करता है। When there's a possibility for me to do my will and exert myself, tit for tat, I look to the Lord and I say, no, Lord, I want to die in this situation. And then the resurrection life comes forth. और जब भी ऐसे मौके आते हैं जहाँ पे मुझे मेरे जीवन के प्रतिदिन के कामों में कोई बात ऐसी आ जाती है कि जहाँ पे मुझे मैं प्रत्युत्तर दूँ या तो फिर उल्टा बोलूँ, ऐसे होने के विषय में मैं प्रभु की ओर देखता हूँ और कहता हूँ कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है, मुझे अपने आप के लिए मरना है। जब मैं अपने आप के लिए उस समय पे मरता हूँ तभी वो उद्धार का जीवन जो है, पुनर्जीवन का जीवन जो है मेरे जीवन में आता है। Brothers and sisters, all of us must learn this part of this Christian life, which is not a milk. भाइयों बहनों, ये जो मसीही जीवन का भाग है जो है वो हमें सीखना है, जो कि दूध नहीं है। We have been speaking about things about the meat of God's word in this church. हम इस कलीसिया में परमेश्वर के वचन के जो अन्न है उसके बारे में बात कर रहे हैं। But if you are disinterested in this, then you will be only liking some milk, some God's love and some comfort and all that. But when we talk about denying ourselves and falling to the ground and dying, our heart should be eager to listen to that. जब भी हम यहाँ पे बात करते हैं स्वयं के लिए मरना और अपने आप को नकार देना, तो हमारे जो हृदय है उसको सुनने के लिए भी राजी हो, हम अन्न खाने वाले हो, सिर्फ दूध का जो सहारा है वो लेकर जीने वाले ना हो। That will give us life in our home and wherever we go. और वो हमारे जीवन में और जहाँ कहीं भी हम जाते हैं वहाँ पे हमें जीवन प्रदान करेगा। And I liked what Brother Clifford said about he's not interested in ministry. जैसे कि भाई क्लिफर्ड ने कहा कि वो सेवकाई में दिलचस्पी नहीं रखते हैं। How many of us have that same attitude in our heart? हम में से कितने लोगों के मन में भी ऐसे ही मनोभाव है? Ministry? What is ministry? सेवकाई क्या होता है? Without fellowship with God, ministry is nothing.
परमेश्वर के साथ संगति के बिना सेवकाई तो कुछ भी नहीं है। If we are just connected to the Lord Jesus and we have fellowship with Him, He will use us in some way or the other. यदि हम परमेश्वर के साथ जुड़े हुए होते हैं, संपर्क में होते हैं, उनके साथ हमारी संगति होती है, तो किसी न किसी तरह परमेश्वर हमारा उपयोग करेंगे। I want to say like him that I am not interested in ministry. और मैं उन्हीं की तरह बोलना चाहता हूँ कि मैं सेवकाई में दिलचस्पी नहीं रखता हूँ। I am not interested in coming here and preaching every time. मैं इस बात में दिलचस्पी नहीं रखता हूँ कि मैं यहाँ पे आकर हमेशा ही प्रचार करते रहूँ। I want to do that only because there is a need. मैं वो करना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत है इसलिए। And that is the only thing that I should come here for. और वही एक बात होनी चाहिए जिसके लिए मैं यहाँ आ रहा हूँ। Anything, ministry does not mean only preaching. सेवकाई जो है वो सिर्फ प्रचार करना ही नहीं होता, It can be singing, वो गीत गाना हो सकता है, it can be doing so many things in the work, in the church. या तो फिर कलीसिया में बहुत सारे अन्य अन्य काम करना हो सकता है, Maybe Sunday school, maybe this, all those things. संडे स्कूल लेना, या बात बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। We do it because there is a need and the Lord is using us, that's all. हम वो करते हैं क्योंकि उसके लिए वहाँ पे ज़रूरत है और परमेश्वर हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हम कर रहे If हैं। somebody else can do it, praise God. यदि कोई और वो काम कर पाता है तो परमेश्वर की स्तुति हो। If younger brothers can do this, I praise God for that. यदि प्राचीन भाई ये कर सकते हैं तो परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। I only want this to become really 100% sure in my life. और मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन में 100% ये बात सत्य हो। I have no longing for anything else other than what God wants in my life. परमेश्वर मेरे जीवन के लिए जो क्या चाहते हैं उसके अलावा कोई और चीज़ की मेरे जीवन में चाहत नहीं Amen. है। आमीन। Very prophetic message which really helped me a lot. और बहुत ही भविष्यवाणी का वचन जो हमने सुना जिसने मेरी सहायता की है। I just want to tell you something which happened 28 years back in my life. और मैं आपसे कुछ ऐसी बात बताना चाहता हूँ जो 28 वर्ष पहले मेरे जीवन में हुआ था। I had gone to one place called water park, और एक जो वाटर पार्क होता है वहाँ पर मैं गया था, and that was about 100 feet above the water. और जो पानी वहाँ पर था वो लगभग 100 फीट की ऊंचाई पर था। नहीं, the क्या होता है टनल जो है ना, और जो water was down and I was 100 feet above that. और जो पानी बह रहा था वो नीचे था और मैं जो था 100 फीट ऊंचाई पर था। And then there was a tunnel over there which we had to go in that tunnel. और वहाँ पर एक गुफा की तरह वो गुफा की नहीं बना हुआ था जिसके अंदर मुझे जाना था। And that tunnel was round like that. और वह जो गुफा थी वह ऐसे घेरा बनाकर उसको रखा And था। the game was that you should go inside the tunnel. और वह खेल इस प्रकार से था कि आपको उस छेद में या जो गुफा है उसमें जाना है। And then when you release your hand, you are just completely inside the tunnel. और जब आप अपने हाथों को छोड़ देते हैं, अपने आप को छोड़ देते हैं, तब आप उस घेराव में घूमते हैं। And then you go down in the water. और जब आप पानी में जाते हैं नीचे, That time the water is not much, only 4 or 5 feet. और वहाँ पर पानी ज़्यादा नहीं है, वहाँ पर पानी 4 या 5 फुट ही होगा। But then when you come down with so much force, then you cannot put your feet on the ground. और जब आप पूरी उतनी ऊंचाई से जब आप तेजी से नीचे आते हैं, उतरते हैं, तब आप वहाँ पर अपने आपको या पैरों को नीचे नहीं संभाल पाते। So you just go down in the water with your feet right. You like almost sleep on the water. और आप ऐसी दशा में वहाँ पर नीचे पानी में पहुँचते हैं मानो आप लेटे हों। Although I am 6 feet tall, but then the water is 5 feet, but still you can drown in that. और भले ही मेरा जो कद है, मेरी ऊंचाई भले ही 6 फुट की हो, लेकिन वहाँ पर पानी जो है वो भले ही 4 या 5 फुट ही हो, फिर भी वहाँ पर मैं डूब सकता था। And then I was struggling in the water. I was trying to, I don't know swimming, so it was very difficult for me, I was struggling to get out of the water because I could not stand. और वहाँ पर मैं बहुत ही ज़्यादा संघर्ष कर रहा था कि उस कम ऊंचाई का जो 5 फुट का पानी था उसमें से मैं कैसे बाहर निकलूं। बहुत ज़्यादा मैं छटपटा रहा था। And the more I was struggling, I was finding it difficult to come out of the water. और जितना ज़्यादा अधिक मैं निकलने के लिए संघर्ष कर रहा था, उतने ज़्यादा अधिक मैं निकल नहीं पा रहा था। I thought that I was going to die now. और तब मैंने ऐसे मान लिया कि अब मैं मरने वाला हूँ। And then I just gave up the struggling. और तब मैंने वहाँ पर वह संघर्ष छोड़ दिया। So to tell you the truth, that time I felt complete peace in my life, as if everything is like peaceful. और तब मैंने पाया कि मेरे जीवन में सब कुछ पूरी रीति से शांत हो गया है। I thought that I experienced complete peace in my life, as if I was dead.
और वहां पर मैंने देखा कि मानो कि मैं लेटा हूँ एक पलंग पर और पूरी रीति से सब कुछ मेरे जीवन में जो है शांति आ गई है। Suddenly, one person pulled me out in the water और तब अचानक से एक व्यक्ति आता है और मुझे वहां पानी से बाहर because there निकालता are है। some what do you call that guy lifeguards. और क्योंकि वहां पर जीवन बचाने वाले जो वो सेवा कर्मी होते हैं उन्होंने मुझे बचाया। So the thing I want to tell you that praise God, He saved me. और परमेश्वर की स्तुति हो कि उस व्यक्ति ने मुझे बचाया। But one thing I realize is what is this dying? Na, that is what I experience practically in my life. और तब वहां पर मैंने देखा कि हम जो ये मरने के स्वयं की इच्छा के लिए मरने के विषय में बात करते हैं, वहां पर मैंने वह एक मरना जो था उसको चखा था। Let's read one scripture. आइए हम एक वचन पढ़ते हैं। 2 Corinthians 4 verse 10. दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 और उसका 10वां वचन। Always caring about in my body the dying of Jesus, so that the life of Jesus also may be manifested in our body. For we who live are constantly being delivered over to death of Jesus' sake, so that the life of Jesus also may be manifested in our mortal flesh. दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 10 और 11। हम यीशु की मृत्यु को अपने देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। As Brother Matthew shared that unless the kernel of wheat dies, it cannot bear fruit. और जैसा कि भाई मैथ्यू ने बांटते हुए बताया था कि जब तक एक गेहूं का दाना मिट्टी में दबकर मर नहीं जाता तब तक वह फल नहीं लेकर आ सकता। Here Paul is saying that I should experience, always means it means 24/7, every minute, every second of our life. और वहाँ पर इस वचन में प्रेरित पौलुस कहते हैं कि हर समय यीशु की मृत्यु को देह में लेकर फिरना, हर समय यानी कि 24 घंटे, सातों दिन, हर क्षण। So always we have to experience the dying of Christ. और हर समय हर क्षण हमें यीशु की मृत्यु को अपने जीवन में अनुभव करना है। Now dying means not of course Jesus took the Calvary's cross, but he experienced the dying of self every single day for 33.5 years that he lived. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपना क्रूस उठाकर उन्होंने क्रूस पर मृत्यु सही, हम उस मरने के विषय में नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि उसके अलावा जो प्रतिदिन यीशु मसीह मरते थे। What was this dying the every day that he experienced? Sometimes it is 4 times, 5 times, even 20 times in a day. और वह जो मरना जो प्रतिदिन हर क्षण यीशु मसीह ने जो उनके जीवन में अनुभव किया वो हो सकता था लगभग दिन में 4-5 बार होता था या लगभग 20 बार होता था। That is what every time what he wanted to do is to deny himself and do the Father's will. और यही कारण था कि जब कभी वह कुछ भी करने की कोशिश करते या चाहते, वह हर समय अपनी इच्छा नहीं परंतु जो परमेश्वर और जो पिता चाहता वह काम करते। So because unless you die to self, you cannot get the life of Christ. और क्योंकि जब तक आप अपने आप की इच्छाओं के लिए मरेंगे नहीं तब तक आप यीशु मसीह के जीवन को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। This is what Paul is telling us in 2 Corinthians 4:10. और यही हम देखते हैं प्रेरित पौलुस दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 10 में हमें कहता है। So when I experienced that death in that water for some time, और जो कुछ उस मृत्यु का क्षण भर का जो स्वाद मैंने उस वहां पर पानी में रहते हुए चखा था, unless you do that on a daily level, every time till you when you have to deny yourself, और जब तक आप हर रोज के जीवन में हर क्षण आप इस बात को, इस मृत्यु को अपने जीवन में अनुभव नहीं we करते, will not experience the life of Jesus. आप यीशु के जीवन को अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पाएंगे। Because as Brother Clifford shared also, just having this knowledge is useless. और जैसा कि भाई क्लिफर्ड भी बांट रहे थे तब उन्होंने बताया कि केवल बहुत सारा ज्ञान ही बटोर कर रख लेना ही हमारे लिए पर्याप्त नहीं होगा, But practically doing things is more important. लेकिन अभ्यासिक रूप से काम करना या उन बातों को काम में लाना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। Like as we study science, there is practicals and theory. जैसे कि हम देखते हैं विज्ञान का जो विषय है जो बच्चे भी पढ़ते हैं उसमें किताबी ज्ञान के अलावा उन्हें अभ्यास भी कराया जाता है। Just having just theoretical knowledge is no use. केवल किताबी ज्ञान होना ही पर्याप्त नहीं है। The Pharisees had so much theoretical knowledge, but they went to hell. फरीसियों के पास भी बहुत सा किताबी ज्ञान था लेकिन फिर भी वो नरक गए। So the more important thing is that every day for me the challenge is to die to self. और हर रोज जो चुनौती मेरे पास आती है वह यह कि मैं अपने आप की इच्छा के लिए मैं स्वयं हर रोज मरूं।
For example, in baptism, what happens is that we go under the water. और जैसा कि मान लीजिए बपतिस्मा देने की जो प्रक्रिया होती है जिसमें वह व्यक्ति जब पानी में ऐसे डुबाया जाता है, It is for this few seconds that we are under the water. It is as if we are dead to self. और वहाँ पर देखते हैं कि वह जो हम जो होते हैं वहाँ पर कुछ क्षण या कुछ मिनट के लिए ही पानी के अंदर होते हैं. That is the way we have. I have got to experience in my life. Die to self every single day, many times. और इसी रीति से मैं अपने जीवन में उस हर रोज हर क्षण उस मृत्यु को अनुभव करना चाहता Then हूँ. only I will experience the life of Jesus. तभी मैं यीशु के उस जीवन को अपने जीवन में अनुभव कर पाऊंगा. Praise be to God. Amen. परमेश्वर की स्तुति हो. धन्यवाद करते परमेश्वर की आत्मा ने जो हम कलीसिया से बात की उसके लिए. I thank the Lord for what we heard, the Spirit of God speaking to us. किस रीति से भाई ने अच्छी तरह बताया कि ज्ञान का जो वृक्ष होता है और जीवन का वृक्ष के विषय में. Brother very clearly explained to us what is the tree of good and evil and the tree of knowledge तो and tree of life. या हम में से सब कोई ये दो पेड़ की तरफ ही हो सकते हैं. This can be the experience with each one of us in our lives. ज्ञान का लेते रहेंगे या तो उस जीवन की ओर हम बढ़ना चाहेंगे. Either we take in a lot of knowledge in our life and keep on doing that, but no progress towards life. देखो पौलुस खुद कहता है कि ऐसा ना हो कि मैं तुमको ये शिक्षा देकर खुद ठोकर खाऊं. That is why Paul said that it should not be so that after I have taught all these things that I myself will stumble. देखो उसको खुद को भी ये डर था Even Paul had this fear in him. कि मैं तुमको सिखा के ऐसा ना हो जो मैं खुद ठोकर खाऊं. He had this fear that after teaching so much that he himself should fall short. इसलिए वो कहता है इसीलिए मैं क्या करता हूँ. So that is why he said, this is why I do this. मैं अपने शरीर को मारता कूटता हूँ. इन शॉर्ट मैं अपने शरीर के इच्छाओं को त्यागता हूँ. I die. So that is why he said that he is putting his body to death and he's making it die, not fulfilling the desires. वीकली बेसिस पे नहीं, Not on weekly basis, डेली. but on daily वो कहता है मैं basis. रोज मरता हूँ इसीलिए. That means every day he was dying. कौन कह रहा है बात? Who's saying this? पौलुस. It's Paul. सो हमको भी ब्रदर्स एंड सिस्टर ऐसे चुनौती लेना चाहिए. So this is a challenge, brothers and sisters, for each one of us. जो मैथ्यू ब्रदर कह रहे थे वो मेरे मन के अंदर घूम रहा था वही चीज. What Brother Matthew was saying, that was coming in my mind जब too. तक हम मरेंगे नहीं ब्रदर्स एंड सिस्टर वो लाइफ रिवील ही नहीं होगा बाहर. Brothers and sisters, unless we die, this life will not be revealed. जो यीशु ने वो उदाहरण दिया वो दाना जब तक मरेगा नहीं वो बहुत फल लाएगा नहीं. Jesus gave that example that until that grain falls into the ground and dies, there will be no life. ब्रदर्स एंड सिस्टर 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 3 में हम देखते हैं We can see in 2 Corinthians उसका chapter 3 14 वचन में हम देखते हैं and verse 14. वहां पर लिखा है परंतु वे मतिमंदी हो गए क्योंकि आज तक पुराने नियम में पढ़ते समय उनके हृदय पे पर्दा पड़ा रहता है. But their minds were hardened, for until this very day at the reading of the old covenant, the same veil remains unlifted देखो ये because लोग it is वचन removed पढ़ in रहे हैं Christ. लेकिन परमेश्वर कहता है ये मंद बुद्धि हो गए, इनके आंखों में बुंदियां आ गई, वो क्या बोलते हैं उसको मोती बिंदी जैसे आ गई, उनको पढ़ के समझ में नहीं आ रहा. We see here very clearly that they were reading the old covenant, but their minds were hardened. It was like they had cataract in their eyes. और 15वें वचन में लिखा है आज तक भी वैसे ही है. And he says that this is going on even till now. वचन पढ़ रहे हैं बट उनकी लाइफ में कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है. He sees that they're reading the word of God, but there's no change in their life. ब्रदर्स एंड सिस्टर ये हमारे साथ भी हो सकता है. Brothers and sisters, this is what can happen to अगर हम each of us. परमेश्वर के वचन को सीरियसली नहीं लेंगे तो If we do not take the word of God seriously in our lives. जब भी कोई भाई या बहन यहाँ कर प्रचार करते हैं Whenever a brother or sister comes and shares over here, हम कैसे लेते हैं उसको? how do we take it? क्या हम सीरियसली लेते हैं उसे? Are we taking it seriously? उसके आगे के वचन में क्या लिखा है 16वें वचन में? And what is the verse that we see ahead? परंतु That's जब 16. कभी उनका हृदय फिर जाएगा परमेश्वर की ओर But whenever a man turns to the Lord, वो पर्दा हट जाएगा. the veil is taken away. ब्रदर्स एंड सिस्टर यही है जब वचन सुना क्या डू वी वांट टू रिपेंट? This is the very same thing, brothers and sisters, after hearing the word of God. Do you want to repent? भाई और बहन जब भाई आके यहाँ पे कहते हैं ऐसे जीवन जियो बदलो तो क्या हम रिपेंट करना चाहते हैं उस चीज से? When brothers come and share that we need to lead our life like this,
Do we have repentance in our ब्रदर्स एंड hearts? सिस्टर, मैं करना चाहता हूँ, Brothers and sisters, I want to do मुझे this. वैसा ही नहीं रहना, I don't want to remain the same. मुझे बदलना है। I want to change. क्योंकि जैसे भाई ने कहा, मिनिस्ट्री कुछ वैल्यू नहीं है। Just like brother said that ministry has no value. ये जब मैं पिछले कलिसिया में था, उस दिन एक बार प्रभु ने मुझे ये चीज बताया मत्ती अध्याय 7:21 में, और कल भी गाड़ी में हम वही बात कर रहे थे। One of the things that I learned in the previous church was this very same thing that's प्रीवियस written चर्च में in, नहीं ब्रदर्स एंड सिस्टर, वन डे लॉर्ड रिवील मी ऑन दैट। the Lord revealed it to me. That's from Matthew 7 verse 21. हाँ, कि तू कितना भी सेवकाई कर, ऑन दैट डे इट विल नॉट मैटर। Whatever service you do will not matter on that final एक ही day. चीज मैटर करेगा, Only one thing will matter. प्रभु के साथ तेरा रिश्ता। What is your relationship with Jesus? उस दिन से मैंने प्रभु से कहा, लॉर्ड मुझे चाहे कुछ भी काम मत दो आप, आई एम रेडी, लेकिन मुझे डिसेप्शन से बचाओ लॉर्ड, मुझे वो ट्रूथ की तरफ ले आओ। That's what I cry out to the Lord. Lord, I may not have anything else, but give me your word and let me not be deceived. तो मेरा मिनिस्ट्री तो रुका नहीं, लेकिन अभी तक मिनिस्ट्री तो अभी भी मैं कर ही रहा हूँ यहाँ पर कुछ ना कुछ। Is ministry something I'm still doing? मैंने कहा, प्रेयर किया, लॉर्ड ने रुका नहीं दिया। I have prayed and the Lord has not deceived me. नहीं, रुका नहीं दिया है मिनिस्ट्री को। The Lord has not stopped me from मैं अभी doing भी कुछ ना ministry. कुछ करते रहता हूँ, I still keep doing बट something or लेकिन the मेरा other. मोटिव ये नहीं कि मैं मिनिस्ट्री करूँ, भले मुझे नहीं मिला, आई एम स्टिल हैप्पी। But my motive is not to do the ministry, but even without ministry, I'm happy. एक भाई था, There was a brother, मेरे को नाम नहीं लेना, I don't want to take his उसने name. मुझसे कहा, मुझे एक चीज दिया जाता था जो अभी मुझे नहीं दे रहे। He said that I was given a certain responsibility before, which I'm not given now. तो इसके लिए मैं कलीसिया में नहीं आ रहा हूँ। That's why I'm not coming to the church. और दूसरे भाई के बारे में बहुत बुरा बुरा कह रहा था। And he was speaking evil about that मैंने brother. उस भाई से कहा, Then I told that brother कोई व्यक्ति आपको कुछ चीज नहीं दे सकता, रिमेंबर दैट। that a human being cannot give you anything. हर एक उत्तम वस्तु स्वर्ग से आता है। Every good gift comes from above. अगर परमेश्वर ने तुम्हें नहीं दिया है, If God has not given you that यू gift, हैव टू रिपेंट। you have to repent. मांगो प्रभु से, लॉर्ड समथिंग इज मिसिंग इन मी, कुछ तो गलत हो रहा है मुझसे। So then I should feel that something is missing in कोई me. इंसान आपका प्रभु की सेवा करने से रोक नहीं सकता ब्रदर्स एंड सिस्टर। No human being can stop you from doing the Lord's work. ये परमेश्वर का काम है, प्रभु कराता है हमसे। This is the Lord's work and the Lord will make us do it. हम सबसे प्रभु कराते हैं कुछ ना कुछ। ऐसे नहीं यहाँ के प्रचार करो, गाना गाओ, चेयर भी उठा रहे हो, खाना दे रहे हो, एनीथिंग व्हाट यू डू, ये बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। Whatever we do in the house of God, whether it's preaching, singing, or even taking a chair or serving food, everything can be for the Lord. ब्रदर्स एंड सिस्टर, यहाँ लिखा मन अगर अब जब हम फिराते प्रभु की ओर, वो पर्दा हट जाएगा। Just like this verse which says that when we turn to the Lord, the veil will be और taken उसके away. आगे का वचन अद्भुत है। And that word after that is very उसमें amazing. लिखा, तब तेरा परमेश्वर की ओर देखने का नजरिया बदल जाएगा। Then your looking towards the Lord will change उधर your लिखा है, परंतु outlook. जब कब हम सबके उगाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होगा, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उस तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। But we all with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory ये to बहुत glory, इंपॉर्टेंट है ब्रदर्स एंड सिस्टर। just as from the Lord the अंश Spirit. अंश कर बदलना। That is being transformed into the same image little by little. अंश अंश कर क्या हमारे अंदर बदलाव हो रहा है? Little by little, are we being transformed? एक ही चीज से होगा ब्रदर्स एंड सिस्टर, Only one thing can transform जब us. हम मन फिरा के प्रभु से कहेंगे, लॉर्ड मुझे बदलना है। When we repent and we turn to the Lord and say, Lord, I want to change. बोल रहे, प्रभु ये जो कुछ प्रचार किया वो मेरे लिए था, Lord, whatever has been spoken here is for me. लॉर्ड वो पर्दा हटा देगा। Lord, please take away that veil. जैसे हम वो कहेंगे, लॉर्ड ये मेरे लिए था, आई वांट टू रिपेंट ऑफ दैट, When we accept that the word that was spoken is for us and we repent, तो वो पर्दा हटेगा। then that veil will be taken पर्दा away. हटने के बाद यहाँ लिखा है, अंश अंश कर हमारे जीवन में वो बदलाव आएगा। And then when the veil is taken away, little by little there will be transformation in our जब lives. से हम यीशु में आए, क्या हमारा जीवन में कुछ परिवर्तन हो रहा है? Brothers and sisters, since we have come to know the Lord, there is some transformation in our lives. धीरे धीरे हम बदल रहे हैं। Little by little we are changing. वो कमी है हमारे अंदर, हम कोई सिद्ध नहीं है। We are not perfect. There are still shortcomings in us. लेकिन क्या प्रभु हमें कुछ दिखा रहा है, और तुझे बदलना है, और तुझे वो रेस में दौड़ना है? But is the Lord showing us
areas in which we need to still change. ब्रदर्स एंड सिस्टर, मैं कुछ दिनों से मैंने अनुभव किया है, लॉर्ड मुझे ऐसे सब छोटी छोटी चीज दिखा रहा है जिसको मैं सोचता भी नहीं था ये पाप है. Brothers and sisters, the Lord is showing me things which I never thought that it was sin before, और मैं and those प्रभु- things He is revealing to me, और मैं प्रभु का आभार मानता हूँ and I'm thankful to और God. मैं बोलता हूँ प्रभु वो छोटी चीज भी मेरे लिए अभी बड़ी होने लगी है Lord, even now those little things are becoming big things for और me, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे उससे बाहर निकलने के लिए मदद करें. and it is my desire that Lord, you help me to come out of it. ब्रदर्स एंड सिस्टर, परमेश्वर का आत्मा हम सबके भीतर काम कर रहा है. Brothers and sisters, the Spirit of the Lord is working in each जैसे one of क्लिफर्ड us. ब्रदर ने कहा, वी आर वर्क इन प्रोग्रेस. Just like Brother Clifford said that we are work in progress. तो हम सबके अंदर पवित्र आत्मा वो काम कर रहा है. The Holy Spirit is at work in एक ही us. चीज करना है ब्रदर्स एंड We have सिस्टर, to do just one thing. डेली अपने आप को सेल्फ डिनाई कर कर परमेश्वर की ओर फिरना है. Daily we have to deny ourselves and turn to the Lord. तब हमारे उघाड़े चेहरे से परमेश्वर का प्रताप प्रकट होगा. Then our face will show forth the glory of the वो Lord. जैसे भाई ने कहा, वो रेडिएंट हमारे चेहरे पर दिखेगा. The radiance of the Lord will show forth ऐसा from नहीं our कि हमारा lives. मुंह चमकने लगेगा. इट्स नॉट लाइक दैट. It's not that we start shining or हमारा something, स्वभाव परमेश्वर जैसा बनेगा. but our nature will change into that हम और नम्र बनेंगे of God. It will और become more सबसे प्यार humble. करेंगे. We love others more. प्रभु हम सबको ब्लेस करें. May the Lord bless us. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि हमारे जो भाई ने शेयरिंग किया बहुत ही प्रोत्साहन था और एक आशीषित वचन था मेरे लिए. फिर एक बार कि हमें रिमाइंड कराया कि हम जीवन की ओर बढ़ रहे या एक नियम या एक रीति रिवाज में हम बढ़ रहे. तो हम देखते कि मैं जब सुन रहा था कि मैं खुद अपने आप को जज कर रहा था कि परमेश्वर मुझे मदद करो. और जैसा भाई क्लिफर्ड बता रहे थे कि हमको जीवन की ओर बढ़ना है और ब्रदर मैथ्यू इस तरह से बता रहे थे कि हम अपने आप को क्रूस उठाकर अपने आप को मरना है. तो ये मैं हर दिन मैं चाहता हूँ कि इस तरह से जीऊँ. प्रभु मुझे मदद करो. और एक सुनते सुनते एक वचन मेरे मन में आया कि मत्ती यवन्ना 5 उसका 39 वहाँ पर यीशु कहता है कि तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि तुम समझते हो कि उसमें अनंत जीवन है, तुम्हें मिलता है और वो वही है जो मेरे गवाही देता है. यहाँ पर हम यीशु मसीह बता रहा है 29 में कि यीशु मसीह बता रहे कि तुम बाइबल पढ़ते हो, लेकिन बाइबल पढ़ते समय तुमको क्या लगता है उसमें जीवन है क्या? हम बहुत बार बाइबल पढ़ते हैं इसलिए कि मैं प्रभु का वचन मुझे बांटना है, प्रचार करना है. क्या मैं उस जीवन को ढूंढ रहा हूँ यीशु मसीह के, या जस्ट एक नॉलेज इकट्ठा कर रहा हूँ मेरे प्रिय भाई? तो यीशु मसीह वहाँ पर वही बता रहे कि हम बाइबल क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए कि हम लोगों का प्रचार करें? नहीं, मुझे जीवन चाहिए जो यीशु मसीह के अंदर था. तो बहुत बार हमारा लक्ष्य ऐसे रहता है कि हम बहुत सारा हमारे माइंड में नॉलेज है, जैसे कि हमने सुना कि तो यीशु मसीह गाली सुनकर गाली नहीं देता. हमको सबको पता है, बहुत से लोगों को पता है, बहुत से लोगों को पता है. बट जब लोग तुमको गाली देते हमारा रिएक्ट क्या है? हम गाली वापस दे रहे तो हमारा जीवन नहीं है. हमारे अंदर नॉलेज है, बहुत सारे नॉलेज है, बट हमारे अंदर जीवन नहीं है. तो यही बात यीशु मसीह मुझे सिखा रहे कि तुम विजय तो कितना सारा ज्ञान इकट्ठा मत कर, बट लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है. और लिखा है कि मेरे प्रिय भाइयों आगे यीशु मसीह बता रहे 40 में जीवन कहाँ से मिलेगा हमको. यीशु मसीह वहाँ पर बता रहे देखो, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते. क्या बोल रहे कि यीशु मसीह के अंदर जीवन है. हम जितना भी प्रचार सुन रहे, जितना भी ब्रदर जैक हो, ब्रदर कलीसिया में, हर एक कलीसिया में वो सिर्फ सेकेंड हैंड मैसेज है, बट वो मैसेज लेकर हम परमेश्वर यीशु मसीह के पास जाना चाहिए. लॉर्ड मैं ऐसे जीवन में चाहता हूँ. मैं प्रिय भाई, मैं जब जैसे ब्रदर मैथ्यू हो गया, ब्रदर सैम हो गया, ब्रदर जैक हो गया, कितना सारे मैसेज सुना, मैं देखा कि प्रभु मेरे अंदर वो नहीं है वो जीवन. मुझे ऐसा जीवन मुझे चाहिए. और एक भूख और प्यास के साथ गया, मैंने देखा कि मैं अनुभव किया परमेश्वर वो मुझे दिया. और मैं सच कहता हूँ कि अगर आप भूख और प्यास के साथ जाओगे परमेश्वर तुम्हें भी देगा, हर एक को देगा जो जाएगा उसके पास. तो वो जीवन का स्रोत है. एक व्यक्ति मेरा एक फ्रेंड है, मैं काफ़ी टाइम के बाद मिला, वो अब दारू के नशे में जी रहे हैं
और मैं मिला उससे, वो मुझसे मिला, अरे अच्छा विश्वासी भाई था। बट जब वो मुझे बता रहे थे कि विजय मुझे हेल्प कर, मेरे को मेरा हार्ट इतना स्टबन हो गया है कि मैं पश्चाताप करने जैसा नहीं हो रहा मेरा मन। और उस भाई से जब मैं मिला, मेरे को ऐसा फील, वो मुझे इस तरह से बता रहा था कि विजय मुझे मदद करो। बट मैं देखा कि मैं खुद बेबस हूँ, क्योंकि जो बीमारी तेरे को है वो बीमारी मेरे अंदर भी है। बट मैं इसको एक ही चीज़ बोला, तेरे को बचाने वाला यीशु मसीह है, जीसस के पास जा, जीसस तेरे को बचाएगा। और वो सेम ऐसे मैं भी तेरे जैसे था, बट यीशु ने मुझे चेंज किया, यीशु ने मुझे बदला। तो ये हमारा गॉस्पेल है मेरे प्रिय भाई, ये हमारा सुसमाचार है कि जीवन हमको ज्ञान नहीं बल्कि यीशु मसीह का जीवन हमको पाना चाहिए मदद। और इसके लिए हमारा लक्ष्य रहना चाहिए कि प्रभु मुझे मदद करो ऐसा जीवन पाने के लिए। हम भूख और प्यास के साथ जाएंगे तो परमेश्वर हमें हेल्प करेगा। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर फिर एक बार हमको रिमाइंड कर रहे हैं कि तुम ज्ञान इकट्ठा मत करो। दिन प्रतिदिन हम हो सकता हम ज्ञान इकट्ठा करते रहेंगे, बट जीवन नहीं है। तो इसलिए हम अपने आप को जज करना चाहिए कि क्या मैं परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ रहा हूँ या जीवन में बढ़ रहा हूँ। क्या मैं 10 साल से पहले मैं इस चर्च में आया था, आज भी क्या मैं वैसा ही हूँ या चेंज हो गया हो, या परमेश्वर ने मुझे चेंज किया। फॉर एग्जांपल मैं खुद का बता रहा हूँ, मैं जब इस CFC में आया, CFC में आने से पहले मैं कुछ और था, पश्चाताप रेडिकली चेंज किया। बट जब इधर आया मुझे बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा हुआ और मैं घमंड से भर गया। लेकिन मैंने देखा कि प्रभु मेरे को सिर्फ मेरे को नॉलेज मिला है, बट मेरे अंदर जीवन नहीं। बट मैं पश्चाताप किया, रिपेंट किया, लॉर्ड मुझे जीवन दे मुझे, ताकि मैं तेरे लिए जी सकूं। और मैं सच कहता हूँ परमेश्वर ने मुझे चेंज किया। परमेश्वर ने वो जीवन दिया जो दूसरे को मैं माफ़ कर सकूं। मैं एक छोटा छोटा गवाही बता सकता हूँ कि मैं दूसरे को माफ़ करने मेरे लिए बहुत आसान हो गया। क्यों? मैं अपने आप से नहीं किया, बट परमेश्वर का जीवन मेरे अंदर है कि मैं इस भाई को माफ़ कर सकूँ। मेरे अंदर वो जीवन है कि परमेश्वर ये बारे में मेरा बुराई करे पीछे से, परमेश्वर मैं माफ़ करता हूँ उसको, मैं ब्लेस करता हूँ उसको। ये जीवन है। मुझे नफरत नहीं हो, अरे मेरा बुराई क्या है, ये मेरा नाम खराब कर रहा है, नहीं। जब क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है, वो लाइफ परमेश्वर हमें चाहता है और हर एक को जीवन परमेश्वर देना चाहते हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों। तो गॉड ब्लेस यू एनकरेजिंग के लिए।